possible areas with excellence. Just a minute. Then he has been nurturing students nationwide for the past 23 years. The great contribution once again for the last 23 years he is nurturing students countrywide. In his span he has conducted many seminars in prestigious schools and colleges. The main topic of discussion is on how to memorize faster and retain it for longer duration. Because we normally listen and we forget. We are unable to retain, we are unable to reproduce timely. So that's the magic he has, Tiwari ji. And career aspects after school and college. His main focus on these two things. Technical field is very vast. To achieve the culmination, one has to focus on selected areas, these masses, goal setting and achieving the desired, accolades of life is done by efficacy. He has conducted nearly 1,500 plus seminars in IITs, NITs and other reputed colleges of India. So we are lucky to have such a learned, dynamic and versatile speaker, Mr. Jiten Tiwari ji from ADG. So there are Jordan College and and now you are feeling, you must be realizing the importance of the event. Because earlier I was contacting hostel warden, then girls representative, then large Manti madam who was not even at all receiving my call. Like that, we could gather this beautiful audience. And you are luckiest. I should see that you are here, that you will be directly benefited. Others are definitely the losers at present. For them, I will have to arrange sometimes in the future. Okay? So, I hand over the mic to Mr. Tiwari ji. Please go ahead with your proceedings. Okay? मैंने बताया सुनना क्यों चाहेंगे? Because seeing is listening. जब हम देखते हैं तब हमें विश्वास होता है ना. चलो सर आपका नाम लिखा बुक ऑफ क्रिकेट्स में होगा वही बात है. लेकिन ऐसे टाइप करते करते वालों को क्या होता है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. चलो उस पॉसिबिलिटी के लिए, उस बिलीफ के लिए मैं इसे रिकॉल कर रहा हूँ टॉप टू बॉटम. ध्यान से देखें. अगर कहीं कोई मिस्टेक होती है तो उसे मार्क करके रखें. जब मैं फिनिश करूंगा तो बताएंगे कहां से वहां मिस्टेक ना. शुरू करें. ओके, लेट्स सी दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ओके, दैट इज दिस इज 629513528492884153961842 that is 3649 that is 61259473184592178541. What the mistake? Thank you so much. Was there a mistake? No, sir. No mistake at all. Such is the capacity for brain. सिर्फ एक बार टाइप किया और टाइप करते करते इम्पॉसिबल देखने वाले 100%. कैसे किया मैंने सीखना चाहिए. Yes, that's why we are here. लेकिन आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे थे सर आपने बहुत सारे नंबर्स मिस कर दिए थे, है ना. बहुत सारे नंबर्स आपने दिए वो मैंने टाइप नहीं किया. वो क्यों स्किप किए थे, क्यों मिस किए थे? यहाँ देखेंगे आप पूरी लिस्ट में देयर इज नो जीरो. पूरी लिस्ट में देयर इज नो जीरो. पूरी लिस्ट में देयर इज नो डबल नंबर. 11, 22, 55, 77, 99. देयर इज नो सिमिलर काइंड ऑफ नंबर. सिमिलर काइंड ऑफ नंबर कैसे? किसी ने बोला 25 एंड 26 या 2552. तो एक जैसे वाले नंबर, जीरो वाले नंबर, डबल वाले नंबर और सिमिलर काइंड एक जैसे नंबर को मैंने स्किप कर दिया. क्यों? क्योंकि वो और भी आसान होते याद करना. 10, 11, 22, 20 है ना. इट वुड हैव बीन इजियर. तो मैंने उन आसान वाले नंबर्स को हटा के इस लिस्ट को डिफिकल्ट बनाया ताकि आपको बिलीव हो कि अगर डिफिकल्ट को याद किया जा सकता है तो आसान को आसानी से याद किया जा सकता है. व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएशन? एसोसिएट करना, रिलेट करना, लिंक करना. जैसे मैं पूछूं व्हाट द कलर इज स्माइल? ब्लैक. अगर मैं बोलूं रेड कलर तो आप मानेंगे? ग्रीन कलर तो मानेंगे नहीं. क्यों? बचपन से हमारे दिमाग में एसोसिएशन है. कैसी कोई भी दिखने वाली चीज होगी उसमें ब्लैक होगा. जनरल एसोसिएशन. सेकंड लॉ, इसका लॉ विजुअलाइजेशन. व्हाट डू यू मीन बाय विजुअलाइजेशन?
टू सी, देखना। जैसे हम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज देखी हो, यहाँ बैठे बैठे आप अपना 10th क्लास देख सकते हैं, 12th क्लास, family members. What you have seen can be visualized, what you have not seen can also be visualized. How? I'll show you through the examples. Third law, this is called law of ridiculous thinking. What do you mean by ridiculous? बेकार, बकवास, भिड़ंगा। जैसे मैं माइक पे बोल रहा हूँ, माइक कहीं इक्विपमेंट से कनेक्टेड होगा, वो स्पीकर से कनेक्टेड, सिंपल रिडिकुलस। पूरी इंजीनियरिंग रिडिकुलस है। आप कोई भी चीज अपनी नाम बोलो, आपको दिखेगा वो डिफरेंट। लेकिन ये मेमोरी में कैसे काम करता है? विल सी थ्रू द एग्जांपल्स। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द आफ्टरमैथ ऑफ रेन्स। द ऑफ रेन्स समझ में आया, आफ्टरमैथ थोड़ा थोड़ा समझ में आया। डायरेक्टली वर्ड आया आफ्टरमैथ, कैसे समझ में आ रहा है? आफ्टर द मैथ्स पेपर सर, देखो ऐसे लग रहा है आफ्टर द मैथ्स पेपर, बट द मीनिंग इज समथिंग एल्स। मीनिंग इज आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ रेन्स, बारिश के बाद के प्रभाव। द आफ्टरमैथ ऑफ कोविड, कोविड के बाद के प्रभाव। नेक्स्ट इज डेफर्ड एनुइटी, डेफर्ड एनुइटी, पता नहीं क्या लिखा है सर। नेक्स्ट इज स्ट्राइक क्रिपल्स 5 गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्ट्राइक 5 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्रिपल्स थोड़ा थोड़ा समझना है। सोनिया फ्रॉन्स ऑन श्री कृष्ण स्लॉग, सोनिया और श्री कृष्ण समझना है, फ्रॉन्स ऑन स्लॉग जानबूझकर लिखा होगा सर इन्होंने पेपर में, है ना। बच्चों को ना समझना है, पेपर वाले से ढूंढ ढूंढ के वर्ड्स लिखते हैं। स्टर्टिंग दे स्टफ, वाओ, फोटो देखकर तो बहुत एनर्जेटिक लगा, लेकिन जैसे ऊपर वाली लाइन देखी स्टर्टिंग दे स्टफ, पता नहीं क्या लिखा सर। Meaning is showing off their talent. Strut is showing off. Strut walk. जैसे गर्ल्स यहाँ रैंप पे चल रही, ऐसे मॉडल्स used to walk on ramp that careen, sway from side to side. That walk is called strut walk. Showy, pompous, है ना। Positively आप यूज कर, एक साथ बोले तो मीनिंग है showing off their talent. आप पॉजिटिवली कैसे यूज कर सकते हैं? कोई कैंपस आती, कंपनी आती प्लेसमेंट के लिए, आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप बैठे हुए हैं, कोई आपसे पूछता है why are you sitting here? What are you doing here? You can politely reply, sir, I am here to strut my stuff. I am here to show my talent, my caliber, my ability, my potential. Words plays a vital role in your personality, even if it is a single word. ऐसी कोई भी चीज हमारे सामने तो हम उसे कैसे याद कर सकते हैं? Let's learn with her. This is extirpate, meaning है to destroy, नष्ट कर देना या जिसकी जरूरत है उसे हटा देना. Next is curtail, meaning है shorten or reduce. Shorten or reduce. Extirpate, 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 meaning है to destroy. सबसे मतलब ऐसे अलग-अलग तरीके से अलग-अलग चीजों को याद करने की मेथड। अब आज जो नहीं है उनके सामने आप जाते बोलना this is precarious. बस आप एक ही वर्ड बोलना दिन तक या कल या एक सप्ताह तक, आप देखना कितना डिफरेंस फील होगा। Azure, precarious, extirpate, curtail. Most of the PSUs are curtailing their vacancies. Yes or no? No, they are increasing their vacancy. Now, next वाला segment हम करेंगे what to do after engineering. Most coveted of all competitive examinations in India is ESE. पहले इसी बोलते थे IES. Now the terminology has been updated as ESE. Railways, 12 को मैं IIT जम्मू में था, 13 को नया नोटिफिकेशन आया। रेलवेज इज अगेन गोइंग टू रिक्रूट फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर अस। नेक्स्ट इज गेट, नाम तो सुना होगा आपने। सबसे बड़ा फायदा पीएसयूज। ओएनजीसी ने लेटेस्ट अनाउंसमेंट किया है, ज्वाइनिंग फ्रॉम गेट विल गिव यू 2,40,000 पर मंथ। इंडियन ऑयल 1,80,000 पर मंथ, एनटीपीसी 1,40,000। अगर 1 लाख में मिल रहा है, अभी लेटेस्ट का बताओ, कोल इंडिया भी दे रहा है 2 लाख प्लस पर मंथ। कोल इंडिया लिमिटेड work is less, time is more. There you can prepare for civil services. ये बच्चे कर रहे हैं आजकल। Most competitive of all the competitive examinations in India is UPSC civil service. Numbers बढ़ गए हैं, बहुत अच्छा। 180 लेकिन फिर भी IAS के लिए है, तो आप समझ सकते हैं कैटेगरी। लेकिन यहाँ बेनिफिट क्या हो रहा है? मैक्सिमम सिलेबस आपको हो सकता है इन्हीं में से मिले। प्रियंका को शायद पता होगा कि सिविल सर्विसेज में मैकेनिकल से लिख सकते हैं एग्जाम। प्रियंका सर जबरदस्ती पकड़ के लाए, वो जा रही थी तो सर ने बोला मैकेनिकल को देखना, मैं बताता हूं आने वाले 3 सालों में जबरदस्त पैकेज मिलेगा आपको, क्योंकि 3 साल पूरा मैकेनिकल खाली है। हर एक कॉलेज में मैकेनिकल की स्ट्रेंथ खत्म है, वैकेंसी तो रहेगी। मान लो यहाँ 200 किलो लड्डू है और आप इतनी हो, 2-2, 3-3 डब्बे लेके जा सकते, लेकिन 1 ही किलो लड्डू हो और ये पूरा हॉल खचाखच भरा, पूरे जीसी को बांटना 1 किलो लड्डू। हाँ, यू गॉट इट। सीएससी से बोलना नहीं उनको, है ना। बैंक एसएससी। अभी देखना आईटीएस ने क्या किया है, सीएससी का पूरा ब्रांच दूसरों को दे दिया, अभी दिखाऊंगा मैं। तो बैंक एसएससी रेलवे वन डे एग्जामिनेशन। एसएससी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिविल सर्विसेज की तरफ। अभी सुन रहे हो आप, दिल्ली में ईडी की रेड, इतनी के है ना, इतने नोटिस भेज दिए है ना, ये यही एसएससी से आ रहा है, आईएएस नहीं भेज रहे। Next category to IAS is SSC, SSC 10, SSC 12, SSC graduation, CBI, raw, intelligence, सारा यहीं से काम कर रहा है। पर ध्यान देना कैसे एंट्री। एमटेक एंड पीएचडी सुनने में ऐसे लग रहा होगा
बीटेक के प्लेसमेंट से बेहतरीन प्लेसमेंट इस बार एमटेक के गए। पता है क्यों? पिछले 2 सालों में जिन बच्चों का नहीं हुआ था उन्होंने वहां से मेहनत की और प्लेसमेंट 40 लाख प्लस। अभी डेटा दिखाऊंगा मैं, स्टैटिस्टिक्स तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी And the screening it was there. So I was surrounded by so many activities. So, but anyway, we considered his proposal and ultimately Tiwari ji came all the way from Delhi and blessed you in many ways. हम जब दूसरों को सुनेंगे तभी जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सुनना होता है। तो आपने तिवारी जी को सुना बड़ी गंभीरता से, तो आपका ज्ञान वर्धन हुआ। साथ में देखा भी नहीं, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान से सुनना। बिल्कुल श्रवण मनन निधिध्यासन, सबसे पहले श्रवण ढंग से सुने। आदि शंकराचार्य ने कहा श्रवण मनन निधिध्यासन, सुने, मनन करें, फिर बुने, अकेले में उसका चिंतन करें, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, मनन। जब नींद खुले तब फिर मनन करें और फिर निधिध्यासन, टू अप्लाई इन प्रैक्टिस, फिर उसको आचरण में लाएं। तो 3 टायर सिस्टम, श्रवण मनन निधिध्यासन, as proposed by Adi Shankaracharya, the most serious personality of universe. पता है नहीं? इस तरह से सुनने का प्रमाण सुने, वो भी श्रद्धापूर्वक सुने, फिर आओ अदब के साथ सुने, रिगार्डफुली सुने, जैसे आपने तिवारी जी को रिगार्डफुली सुने, अदरवाइज अश्रद्धा से। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहा गया भगवत गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहित इंद्रिया ज्ञानम लब्धा परम शांति चिरण आदि गच्छति। जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। कई बार हम बोले सर बोलते रहते, उनको बोलने की आदत है, इज वेरी टॉकेटिव, तो हो गया अश्रद्धा। तो जो तुम्हें आता है वो और चला जाएगा। जो तुम्हें नॉलेज है, ज्ञान है, गारंटी है भाई, ये भर कह दो तुम, बोलने का मजा आता है, तो ऐसे बोलते रहते हैं। अश्रद्धा का